So till the last session, we had completed with the potassium permanganate part, in which we covered with the preparation, the chemical reaction, and the uses of it. Okay, so now the next compound we are going to discuss of D block is dichromate, that is K2Cr2O7. Now once again, before I start with the potassium dichromate, जैसे मैंने permanganate के टाइम पे I compared manganate, वैसे ही dichromate के साथ I am going to compare chromate, dichromate versus chromate. So potassium dichromate is K2Cr2O7 and potassium chromate is K2Cr O4. डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है और क्रोमेट में 1 क्रोमियम है. ठीक है. Now K2Cr2O7 is named as potassium dichromate and the color of this is orange red, and it is also a very good oxidizing agent similar to potassium permanganate. Versus K2CrO4 having 1 chromium is potassium chromate and its color is yellow. If I break down and talk about the anion, what will be the anion of dichromate? Anion क्या होगा? So Cr2O7 2 minus. Cr2O7 2 minus. Very good. तो dichromate anion की अगर बात करें तो Cr2O7 2 minus and chromate will be CrO4 2 minus. Now let's talk about the oxidation state. So इसका अगर कैलकुलेट करें तो it will be 2x minus 14 equals to minus 2. उधर लेकर जाएंगे तो 2x will be equal to plus 12 and x will be equal to plus 6. So here chromium is in the highest oxidation state. Now ये fact है कि whenever any element is in its highest oxidation state, highest में है, तो can it undergo oxidation? No, sir. Obviously not. क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बट कैन इट गो बिलो दैट? Yes, Yes, sir. sir. यस ऑफ कोर्स. मतलब एनी स्पीशीज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो, Reduction. एंड दैट इज द रीजन इट वुड बिहेव एज अ गुड. Reducing agent. Oxidizing Oxidation. agent. उल्टा होता है. A species which itself undergo reduction is a good oxidizing agent. ठीक है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई स्पीशीज अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल बी एबल टू ओनली अंडरगो, Oxidation. एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी बिहेविंग एज अ गुड reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट. तो अब इसी के कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल में है, मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट, देन Both reduction and oxidation. परफेक्ट. क्योंकि मिडल में है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. एंड दैट इज द रीजन कोई भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल में होगा ना, तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड देयरबाय बिहेव एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दी आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट एनालाइज करने के बाद you will be able to understand which is a good oxidizing, reducing or both. Is that clear? Yes, sir. तो क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है एंड दैट इज व्हाई डाइक्रोमेट अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिमिलर टू KMnO4. द फैक्ट दैट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीशीज एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ना क्रोमेट की अगर बात करें तो इट विल बी x minus 8 equal to -2 and x will be equal to +6. मतलब here also the chromate is having the same oxidation state. Now this if I compare with potassium permanganate and manganate, were the oxidation states same there? No, No, sir. sir. No. Permanganate had +7 and manganate had +6. +6. वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर रहा था.
ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब हम कंपैरिजन करेंगे. Then if I talk about the electronic configuration, what will be the configuration be? So argon 3d54s1. That is for chromium. तो +6 के लिए क्या हो जाएगा? 3d0. 3d 0. 3d54s1 have 6 electrons. When all of them are lost in the +6 oxidation state, the electronic configuration would be 3d 0 in both. And because of that, will it be para or dia? Dia. दोनों ही डाया होंगे क्योंकि देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. डायामैग्नेटिक है. ठीक है, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इट शुड हैव बीन कलरलेस. दोनों ही कलरलेस होने चाहिए, बट वी ऑलरेडी नो दैट बोथ ऑफ देम आर कलर्ड. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन? Charge Charge transfer transfer. spectrum. Charge transfer. कोई भी स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी वो कलर्ड है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दैट जिसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. जस्ट ये एक ध्यान रखना कि whenever a species is not having any unpaired electrons till it is colored, the color can be related with the concept of charge transfer spectra. Clear? Yes, sir. तो ये इंट्रोडक्शन समझने के बाद the things will be easier to understand. इसलिए स्टार्टिंग पार्ट में आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट का कंपैरिजन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज प्रिपरेशन मेथड. नाउ परमैंगनेट को किससे प्रिपेयर किया था? व्हाट वाज द रॉ मटेरियल? So MnO2 cryolucite ore. क्रायो नहीं. Pyrolusite ore. हाँ, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड which is pyrolusite ore. यहाँ पर the preparation of the dichromate is from the chromite ore. chromite ore. So raw material जिससे ये प्रिपेयर किया गया है that's chromite ore, and the formula of chromite ore is FeO.Cr2O3. It's a double oxide of ferrous and chromic. फेरस क्योंकि +2 है और क्रोमिक मतलब +3 है. या फिर इसको बहुत बार कंबाइन करके लिखते हैं FeCr2O4. FeCr2 और O टोटल 4 है तो FeCr2O4. ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्टेप्स है. द फर्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोस्टिंग? So burning in the absence of air. नॉट इन द एब्सेंस. In the presence of air. एब्सेंस को कैल्सिनेशन बोलते हैं और प्रेजेंस को रोस्टिंग बोलते हैं. तो रोस्टिंग इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, तो यहाँ पर द chromite ore FeO.Cr2O3 is burnt in the presence of oxygen, wherein the ferrous gets oxidized to Ferric. ferric. मतलब FeO will change to Fe2O3 ferric oxide and the Cr2O3 will be separated. तो बेसिकली यहाँ पर रोस्टिंग किया गया है फॉर सेपरेटिंग द ऑक्साइड. हमने फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया और Cr2O3 एज इट इज सेपरेट हो गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में द Cr2O3 द क्रोमिक ऑक्साइड व्हिच इज सेपरेटेड is burnt in oxygen in the presence of washing soda, and washing soda is Na2CO3. sodium carbonate is called washing soda. A further roasting washing soda के presence में जब करते हैं तो we get Na2CrO4 plus CO2. Na2CrO4 and CO2. कार्बोनेट है तो CO2 तो निकलना ही है एंड सोडियम और क्रोमियम मिलकर Na2CrO4 बनाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Sodium chromate. इसलिए मैंने आपको CrO4 अनायन के पहले
डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो CrO4 दिखा, मतलब ये सोडियम का क्रोमेट हो गया, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो नेट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो Cr2O3 इज बेसिकली जस्ट एन Intermediate. intermediate. The chromite ore is roasted in the presence of washing soda to convert the chromium into sodium chromate, ferrous oxide into ferric oxide, and the liberation of CO2 is there. तो ये हो गया रोस्टिंग का प्रोसेस। अब सेकेंड स्टेप में देर विल बी कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट को अब कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइक्रोमेट बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में रोस्टिंग किया सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करेंगे। So in acidification, Na2CrO4 is acidified with dilute H2SO4, and on acidification, the sodium ka chromate changes into sodium ka dichromate. Along with that, we get Na2SO4, sodium sulfate, and the hydrogen acid है तो will be converted into water. तो ये हो गया अपना कन्वर्जन क्रोमेट टू डाइक्रोमेट एसिडिफिकेशन से। ठीक है, अब हमें जो चाहिए दैट वाज पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट व्हाट वी हैव गॉट इज सोडियम डाइक्रोमेट। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि हम स्टार्टिंग से ही पोटेशियम आयन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। Why we are first preparing sodium dichromate and then converting to potassium dichromate? अब इसका रीजन ये है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज हाईली सल्यूबल इन वाटर। तो जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगा ना तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। वेरेस ऑन दी अदर हैंड सोडियम का डाइक्रोमेट जो कंपाउंड है उसकी सल्यूबिलिटी कम है, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज द रीजन क्लियर? Potassium dichromate is not directly prepared because it is highly soluble in water, because of which the separation becomes difficult. A very important point to be noted. So that is the reason we first prepare sodium ka dichromate and then convert the sodium dichromate into potassium dichromate. Is the reason clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अब सोडियम से पोटेशियम आयन में कन्वर्जन जो करना है उसके लिए सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, Na2Cr2O7 is added with KCl, where sodium displaces K and K displaces Na। मतलब Na की जगह K और K की जगह Na, अदला बदली हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट के बाद we get K2Cr2O7 as expected, potassium dichromate and NaCl. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो द थिंग्स विच आर गिवन। मैंने जस्ट इसको स्टेप वाइज में लिखा है फॉर यू टू अंडरस्टैंड इजीली। तो पहला स्टेप है रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दूसरा स्टेप है एसिडिफिकेशन, और तीसरे स्टेप में हम कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जो वे से टेक्स्ट बुक में दिया ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर स्टेप वाइज आप देखोगे तो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? Yes, sir. नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो डाइक्रोमेट के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट देयर आर ओनली 2 रिएक्शंस व्हिच इज गिवन इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड्स। आपको सिर्फ 2 ही रिएक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, अब डाइक्रोमेट के लिए अगेन द प्रॉपर्टी of this as an oxidizing agent is very important. Now the reaction which is given in the textbook is given directly.
आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बताऊंगा, आपको स्टेप वाइज रिएक्शन बताकर फिर नेट रिएक्शन कैसे लिखना है विदाउट मगिंग अप द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना। तो सबसे पहले एक पेरेंट रिएक्शन लिखते हैं ऑफ डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द K2Cr2O7 in presence of dilute H2SO4 has a tendency to give out the nascent oxygen, और जो species nascent oxygen देता है that has a tendency to undergo the oxidation reaction। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन सोचे तो पोटेशियम एंड क्रोमियम बोथ आर मेटल्स, और कभी भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो व्हाट डज इट फॉर्म? मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या देता है? Salt. सॉल्ट विद द लिबरेशन ऑफ Hydrogen gas. Hydrogen. हाइड्रोजन गैस। और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू Water. परफेक्ट। मतलब इसके प्रोडक्ट आप समझ सकते हो, मेटल है एसिड है तो आई विल गेट मेटल का सॉल्ट दैट इज K2SO4. K2SO4. K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, प्लस क्रोमियम का भी सॉल्ट बनेगा इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम का +3, सल्फेट का सॉल्ट है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला तैयार, Cr2SO4 थ्राइस, प्लस पानी मिलेगा, एंड एज आई डिस्कस्ड इट इज गोइंग टू गिव यू अ nascent oxygen। Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल है, समझ के रिएक्शन करो। इनऑर्गेनिक जितना समझोगे उतना ज्यादा इजी लगेगा, मगअप करने की कोशिश करोगे उतना थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट, इनफैक्ट वो समझ ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, मगिंग इज नॉट द ऑप्शन फॉर इनऑर्गेनिक, यू कांट डू दैट। So dichromate with sulfuric acid, conceptually metal in contact with the acid forms the salt, we got the two products, and releases hydrogen, but being an oxidizing agent it will be converted into water and it will also give away the nascent oxygen। तो ये लिखा मैंने रॉ रिएक्शन। ठीक है, हमेशा पहले रॉ रिएक्शन लिखना है, बैलेंसिंग की चिंता पहले नहीं करनी है। अब वी कैन बैलेंस। तो सबसे पहले मेटल्स को चेक कर लो, K2Cr2 बैलेंस्ड है। फिर सल्फेट्स को देखो, हाउ मेनी सल्फेट्स डू यू सी इन द राइट? 4. एंड ऑल द सल्फेट आयंस आर कमिंग फ्रॉम, Sulfuric acid. so of course there will be 4 moles of sulfuric acid। अब जितना मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उतना ही पानी बनेगा, because all the hydrogen of water are coming from the acid only, do you agree? Yes, sir. तो 4H2SO4 किया तो 4 पानी आ जाएगा। ठीक है, अब सल्फेट के ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, बचे खाली डाइक्रोमेट के ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू यू सी? 7. 7 में से 4 आर गॉन इन, Water. so there will be how many nascent oxygen present? 3. 3. खत्म, this is your balanced reaction। है कि नहीं पपलू? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज द पेरेंट रिएक्शन। पेरेंट रिएक्शन मतलब अ रिएक्शन विच विल बी कॉमन फॉर ऑल द अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस मतलब मैं फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, दैट इज द ऑक्सीडेशन फॉर द आयोडाइड। Now in case of permanganate, when there was iodide ion, it got oxidized into what? So iodine and IO3 minus. हाँ, there were two cases, acidic medium में Iodine. और न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में Iodate. परफेक्ट। इस केस में मीडियम एसिडिक है तो क्या बनेगा? Iodine. 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 आयोडीन। तो पोटेशियम के लिए हमेशा एसिडिक मीडियम लगेगा, तो Ki in H2SO4 will now take away this nascent oxygen। कहाँ से आया nascent oxygen? Parent. K2Cr2O7. ऊपर से, फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन। तो यही वापस कंज्यूम होने वाला है।
ठीक है, ऑब्वियसली नेसेंट ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो जैसे ही बनेगा वैसे ही इट नीड्स टू गेट Consume. consumed. So now, can you tell me the products? Ki with H2SO4 and oxidized. So I2, K2SO4 and H2O. Perfect. लॉजिकल है, मेटल एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा, आयोडाइड का I2 बनने वाला है, और एसिड जब भी होगा पानी तो बनना ही है। ठीक है, नाउ कैन यू बैलेंस दिस सिंपल रिएक्शन? 2 Ki. दैट्स इट, बैलेंस हो गया। देखो K2 है, I2 है, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Now, how many nascent oxygen did I require? 1, 1, One. But how many we had got in the previous reaction? 3, 3, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए I should multiply this entire reaction by 3. 3. 3. क्यों किया समझा? क्योंकि जितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए उतने ही तो कंज्यूम होने चाहिए, तो ही तो वो कैंसिल होगा, राइट? बोलो। yes, Yes, sir. sir. तो ये वाले रिएक्शन को मैं बोलता हूँ छोटू रिएक्शन। पहले लिखा पेरेंट और दूसरा लिखा छोटू। अब पेरेंट और छोटू को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अपना नेट रिएक्शन, जो आप टेक्स्ट बुक में देख पाओगे। So now the first thing is the 3 nascent oxygen which was formed will get cancelled off over here, क्योंकि multiplied by 3 है ना। तो अगर मैं स्टोइशियोमेट्री को जस्ट रेफरेंस के लिए नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, this will be 3, 3 and 3. Got it? Yes, Yes, sir. sir. Now just add up the two steps. From the left side, I get K2Cr2O7 plus how many H2SO4 total? 7, 7, 7 is added with how many moles of Ki? 6, 6 will give you the salt of potassium K2SO4. How many in total? 2, 4. 4. क्योंकि 1 + 1 नहीं है, 1 + 3 करना है, इसलिए मैंने स्टोइशियोमेट्री नीचे लिखा है आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि मिस्टेक नॉर्मली होता है। ठीक है, तो 4 moles of K2SO4 plus Cr2SO4 thrice प्लस पानी कितना? 4. 7, 4 नहीं है निशा, ये देखो 3 नीचे लिखा है Oh, yes, sir. है ना, इसीलिए मैंने लिखा हाँ। है ताकि वो मिस्टेक ना हो, मुझे पता है वो मिस्टेक होने ही वाला था। Plus 3I2 and 7H2O. Now look at the reaction which is given in the textbook. अगर मैं ये रिएक्शन डायरेक्टली आपको बताता आपको बहुत डिफिकल्ट लगता, राइट? समझा क्या करना है? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का है। वंस अगेन परमैंगनेट सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा था? Sulfate. ना 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 ना, दैट वाज थायोसल्फेट कन्वर्टेड टू सल्फेट। सल्फाइड S-2 की बात कर रहा हूँ। S with a -2 was oxidized to Sulfur. just S, that is sulfur। समझा? तो अब पेरेंट रिएक्शन जो है ना वो तो फिक्स हो गया आपका। पेरेंट रिएक्शन इज ऑलवेज फिक्स, पेरेंट बदलता नहीं है, बच्चे बदल सकते हैं। तो यही फंडा है कि पेरेंट विल रिमेन फिक्स, छोटू रिएक्शन विल चेंज, एंड देन यू कैन जस्ट ऐड अप टू गेट द नेट रिएक्शन। और ऐसे कोई भी रिएक्शन आप एक्चुअली लिख सकते हो। So K2Cr2O7 plus H2SO4 conceptually gives you metal ka salt K2SO4, that is potassium sulfate plus Cr2SO4 thrice chromium sulfate H2O and nascent oxygen। once again बैलेंसिंग कैसे बताया था? मेटल बैलेंस्ड है, टोटल सल्फेट 4 है तो 4H2SO4, जितना एसिड उतना पानी,
और 7 ऑक्सीजन में से 4 पानी में गया तो बचा 3, बन गया अपना पेरेंट रिएक्शन। अब लिखने जा रहे हैं हम छोटू रिएक्शन विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फर देगा प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन Water. वाटर देगा। वंस अगेन ये बैलेंस रिएक्शन है, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 3. 3. 3 सो दैट नेसेंट ऑक्सीजन जो ऊपर है वो बैलेंस हो जाए और कैंसिल हो जाए। तो अगेन मैं स्टोइशियोमेट्री आपके लिए नीचे लिख देता हूँ। दिस इज 3 3 3 and 3. This gets cancelled with this, and now we can write the net reaction. Help me everyone. We have K2Cr2O7 plus कितना H2SO4 यहाँ पर 4. 4 ही है because there is no H2SO4 in the Chotu reaction, plus thrice of H2S giving you K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 3S and 7H2O. That's all. यही दो रिएक्शन है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, और कलर चेंज इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट केस डाइक्रोमेट का कलर तो ऑरेंज रेड ही था, बट आयोडीन बनने की वजह से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्राउन। रीजन ये है कि क्रोमियम Cr2SO4 थ्राइस का कलर ग्रीन होता है और I2 का वायलेट होता है। तो ये जब मिक्स हो जाता है तो द सोल्यूशन चेंजेस इनटू ब्राउन। और इस केस में जो एटॉमिक सल्फर है उसका कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए the orange red in this case changes into green. And if I talk about oxidation states, then chromium in both the cases was +6, getting reduced into +3 in both the cases. वो तो parent का same ही है। And जो oxidation reaction हुआ first case में iodide changed to iodine and sulfide oxidized to sulfur. All the important things which could be asked as MCQ or maybe theory are discussed over here. Is that okay? Understood? Yes, sir. That's it. डाइक्रोमेट बहुत छोटा सा पार्ट था, एक प्रिपरेशन मेथड है और दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। Now we come to the common properties of D block elements. तो एज अ समरी D ब्लॉक की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसका शॉर्ट नोट है ये। All D block elements are lustrous and shining. The reason is all the D block elements are Metals. metals, so obviously they will be having luster and shine. Metals hai to they are hard and have high density in general. Now as a fact density में the entire D block element का lowest density element is scandium, the first element of the D block, and highest अगर पूछा जाए तो highest density है osmium और iridium का। एक्चुअली इरिडियम है बट ऑस्मियम का वैल्यू बहुत स्लाइट डिफरेंस से कम है। तो नॉर्मली जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो ऑस्मियम और इरिडियम को कंसिडर करते हैं। देन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स, मेटल्स का प्रॉपर्टी, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी एंड आल्सो डक्टिलिटी, कैन फॉर्म अलॉयज। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है with transition and non-transition elements. Many metals and their compounds are paramagnetic, and most of the metals are efficient catalysts. And the reason they could behave as catalyst is because of the presence of Variable oxidation state. and having a A large surface area for absorption. excellent.
having a large surface area and the tendency to show variable oxidation states. ठीक है, तो the properties which we have already discussed, it's kind of summary of the D block element properties. Then chemical properties में all D block elements are electropositive metals. Obviously, because they have the tendency to show the positive oxidation state and that too variable. So next point वही है, they exhibit variable valencies and form colored salt and complexes. They are good reducing agents because metals always have the tendency to undergo Oxidation. because metals have the tendency to lose electrons, ना? तो oxidation undergo करेगा तो they will be behaving as good reducing agents. Reducing agent. See, I'm giving you the reason for all the points because आप समझ के read करोगे ना तो बहुत आसान है समझने के लिए और याद रखने के लिए. मग अप नहीं करना है, आप इनऑर्गेनिक को मग अप नहीं कर सकते हो. That's the thing I need to explain you. Then they form insoluble oxides and hydroxides. तो यहाँ पर मेजरली इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है ना, दे आर वेरी लेस सल्यूबल या ऑलमोस्ट इनसल्यूबल. देन आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड जिंक आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मेटल्स. हमारी बॉडी के लिए आयरन, जिंक, कॉपर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स है फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस. And many of the D block elements also are used as catalyst in our biological reactions. Clear? Yes, sir. So that completes the first part of the chapter, that is transition elements or the D block elements. अब इसी के साथ अच्छा एक और पार्ट है, सॉरी, differences है. So although most properties exhibited by D block elements are similar, the elements of first row मतलब which series? वो तो 3D series Candyman. 4 रो है ना, 3D, 4D, 5D एंड 6D. 4 ट्रांजिशन सीरीज है, इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. So first row, that is 3D series, differ from the second and third row in stabilization of higher oxidation state in their compounds. For example, molybdenum in 5 and tungsten in 6 compounds are more stable than chromium in the +6 and manganese in the +7 oxidation state. मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो अगर मैं क्रोमियम फ्रॉम 3D, मोलिब्डेनम फ्रॉम 4D एंड टंगस्टन फ्रॉम 5D को कंपेयर करूं, तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है. Now the reason would be related to their size and the atomic radii. Next, highest So oxidation. and inert pair effect won't come into play. नहीं, एक्चुअली यहाँ पर अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई करोगे तो क्या बोला था हमने, बड़े एलिमेंट्स के लिए The lower oxidation state. हाँ, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर वायलेट हो जाता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मेजरली अप्लाइड फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक के लिए वो काम नहीं करेगा एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप. पी ब्लॉक के लिए जैसा डिस्कस करते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक रेडाई बहुत ज्यादा सिमिलर भी हो जाता है. दैट मे बी द रीजन. Yes, so thank you, sir. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज +7, जो कि मैग्नीज का था. एंड इन द केस ऑफ थर्ड रो, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन रुटेशियम ऑक्साइड एंड द ऑस्मियम ऑक्साइड इज पॉसिबल. तो रुटेशियम और ऑस्मियम ये दो ही एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक में या फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में जो +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकता है. बाकी none of the element could show such higher oxidation state. Fine.
Clear? Yes, sir. So this particular statement was important कि molybdenum और tungsten के higher oxidation state ज़्यादा से stable है than the 3D series के higher oxidation states. Now the second part of the chapter deals with the processes of extraction of metals. Now why metals need to be extracted? They are found in ores. They are found in the combined state, that is in the form of ores or minerals. तो मेटल्स जो है वो डायरेक्टली अपने एटॉमिक या एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. ठीक है. नाउ जनरली जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होता है उसके लिए हम मिनरल्स या ओर्स की बात करते हैं. बट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? Some minerals don't have impurities and ores have impurities. That's one the difference. दोनों में impurities होता है. Even the ore needs to be purified before we could do the extraction process. So ores are basically minerals only with high metal percentage. Ores are nothing but minerals with a high percentage of metal to be extracted. तो minerals जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मान लो हमारे पास आयन है, तो आयन के बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे हेमेटाइट है विच इज आयन का ऑक्साइड, सिडराइट है आयन का कार्बोनेट, मैग्नेटाइट है विच इज अगेन एन ऑक्साइड. ठीक है. तो ये सारे मिनरल्स हैं, लेकिन मान लो हेमेटाइट से आपको 80% आयन मिल रहा है, सिडराइट से 65% आयन मिल रहा है, और मैग्नेटाइट से 50% आयन मिल रहा है. सबसे आयन तो मिल रहा है. तो ऑन अ लार्ज स्केल जब आपको एक्सट्रैक्शन करना रहेगा तो विच मिनरल यू विल प्रेफर? Hematite. Obviously, because it is giving you a high percentage of the metal from it. ठीक है. तो ये सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं. ओर वही होगा जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल हाई रहेगा. So that is the reason ore is nothing but a mineral from which a high percentage of metal could be extracted. So can I say all ores are minerals, but all minerals can't be ores? All Yes. ores are definitely minerals, लेकिन all minerals can't be ores. Logical है? Yes, sir. sir. Now, can we extract all the elements in their elemental state? No, sir. Which are the metals which can't be extracted? So sodium, potassium. And what's the reason? So they are highly reactive, so they form compounds. Correct. They are highly reactive so that जब वो extract भी करेंगे तो they will immediately come in contact with the atmospheric oxygen and will get converted into compounds. ठीक है. तो अलग अलग रिएक्टिविटीज के बेसिस पे मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है. तो ये जो मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज गिवन अ नेम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस या सिंपली मेटलर्जी. Metallurgy is a process by which the metal can be extracted. And based on the reactivity, there are three types of metallurgical processes. One is called hydrometallurgy, other is electrometallurgy, and third is pyrometallurgy. Hydrometallurgy is used for very less reactive metals. So when I talk about less reactive or almost inert metals, कौन से होते हैं?
inert metals which do not react with the oxygen or other gases. Which metal is used to make jewelries? So gold, silver. Gold, silver, platinum. Gold, silver, platinum which is white gold only. तो ये सारे मेटल्स जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना, और हम ज्वेलरीज के फॉर्म में यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? No, sir. sir. नहीं करता है। तो ये सारे इनर्ट या लेस एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट या रादर प्योरीफाई करने के लिए हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं। अब क्या प्रोसेस है वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट ध्यान रहे कि हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज्ड फॉर लेस एक्टिव और इनर्ट मेटल्स। इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज यूज्ड फॉर वेरी reactive metals like the S block metals, sodium, potassium, calcium, magnesium. तो इलेक्ट्रो का मतलब here the extraction is done by the process of electrolysis, इसलिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और pyrometallurgy का मतलब it is for moderately active metals like mainly the D block metals, copper, zinc, iron, ये सब जो है pyrometallurgy के थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है। हम अपने सिलेबस के हिसाब से जो डी ब्लॉक मेटल्स है उनमें पायरोमेटलर्जी यूज करने वाले हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, where the word pyro is related with heat. Pyro is related with fire and fire का मतलब होता है heat. ठीक है, तो इट्स अ completely theoretical part, just you have to understand the basic things, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी है। ठीक है, तो we just need to go through them to understand the various details. तो सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल्स। तो आयरन के बहुत सारे मिनरल्स है। हेमेटाइट इज ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। ये फॉर्मूलाज के साथ याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है और आया हुआ भी है। हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, लिमोनाइट इज 2:3 के रेशियो में Fe2O3 and H2O 2:3। Iron pyrites, pyrites are the name given to sulfides, इसलिए FeS2, और siderite is the carbonate of iron which is FeCO3। और इन सब में से the max percentage of iron is present in hematite, hence this mineral becomes the ore. Hematite is the ore of iron. कॉपर में chalcopyrites is CuFeS2, chalcocite and cuprite. Chalcocite कैल्कोसाइड इज द सल्फाइड ऑफ कॉपर, ये नहीं दिया है, लिख लो Cu2S। कैल्कोपाइराइट इज CuFeS2, कैल्कोसाइट इज कॉपर का सल्फाइड, एंड क्यूपराइट इज कॉपर का ऑक्साइड Cu2O। एंड कैल्कोपाइराइट और कैल्कोसाइट दोनों ही ओर्स है ऑफ कॉपर। जिंक के लिए वी हैव जिंक ब्लेंड, ब्लेंड इज रिलेटेड विद सल्फाइड, जिंसाइट इज रिलेटेड टू ऑक्साइड, and calamine is related to carbonate, and the ore for zinc is zinc blende, from which the zinc could be extracted in higher percentage. ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, you need to remember the formulas and the names. So as I discussed, metallurgy के तीन methods होते हैं। Commercial extraction of metals from their ores is called metallurgy. Different methods are used for their extraction depending on the nature of a metal and its ore. Pyro is a process in which the ore is reduced to metal at high temperature. तो reduction और high temperature दो important words है, and reduction is done by using reducing agents like carbon, hydrogen, aluminium. एंड ये पायरोमेटलर्जी मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। ये नहीं दिया है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स, स्पेसिफिकली डी ब्लॉक बोल सकते हैं।
Hydrometallurgy is the process of extracting metals from the aqueous solution of their salts. हाइड्रो मतलब पानी, इसलिए aqueous solution of salt से उनका extraction होता है using again a suitable reducing agent. और ये use करते हैं for less active या inert metals. And electrometallurgy is a process in which the metal is extracted by electrolytic reduction of molten या fused metallic compound. And this is used for highly active या reactive metals. So remember कौन से प्रोसेस कौन से टाइप के मेटल्स के लिए यूज किया जाता है. Fine. Is this understood? Yes, sir. So now we have the extraction of iron from hematite ore using blast furnace. तो यहाँ पर blast furnace के अंदर क्या क्या reactions होते हैं, what are the steps by which the iron is extracted, ये पूरा detailing है. ठीक है. So as we have discussed that hematite is the ore from which the iron can be extracted and the formula is Fe2O3. And as a matter of fact, iron is the fourth most abundant element in the Earth's crust. So if I talk about the abundance, which are the first three most abundant elements? Any idea? So oxygen, Hmm. hydrogen, and Hydrogen. Nitrogen. ना. not nitrogen. Earth's crust. Atmosphere में बात नहीं कर रहे हैं. It's oxygen, silicon, aluminium, Aluminium. and then comes iron. Iron ranks fourth in the abundance. It's oxygen, silicon, aluminium, and then iron. Okay, so hematite जब अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो आयन ऑक्साइड के साथ देर आर इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका एंड अलुमिना एंड फॉस्फेट्स. तो ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज होती है, those superficial impurities are called gangue. The impurities present in the ore is called gangue. ठीक है. अब कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टेप वाइज प्रोसेसेस होते हैं. तो यहाँ पर पायरोमेटलर्जी के प्रोसेसेस क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले द इम्प्योरिटीज नीड टू बी Extract. not extracted. The impurities Removed. need to be removed. Removed. So the process by which the impurities are removed and the ore is concentrated is called as concentration. Concentration of ore. तो ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसमें से इम्प्योरिटीज निकालते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन, या फिर इसको ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं. ओर ड्रेसिंग या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेनिफेक्शन ऑफ ओर. ये कुछ एक्स्ट्रा नेम्स है, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. कंसंट्रेशन ऑफ ओर ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन ऑफ ओर, मतलब एक ही है कि इस प्रोसेस में जो भी इम्प्योरिटीज या गैंग है उसको निकाला जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट. तो उसमें भी अलग अलग प्रोसेसेस है जो हम आगे देखेंगे. नाउ वंस द ओर इज concentrated, the next step is reduction. Sorry, the next step is roasting, but roasting is conditional. मतलब सब मेटलर्जिकल प्रोसेस में रोस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर कोई और आपका सल्फाइड वाला है
तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, बिकॉज ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू द मेटल। ठीक है, तो रोस्टिंग विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ इट्स अ नॉन ऑक्साइड ओर। ठीक है, जैसे हमने कॉपर के लिए देखा था कि कॉपर के लिए ओर कैसा है, सल्फाइड का है। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हेमेटाइट में विल इट बी रिक्वायर्ड? No, sir. हेमेटाइट में रोस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द ओर इज डायरेक्टली एन Oxide. ऑक्साइड ओनली। ठीक है, once the oxide is formed, then the next step is reduction of the oxide। तो ऑक्साइड को जब रिड्यूस करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, एंड ऑक्सीजन निकलने के बाद मेटल मिल जाएगा। बट उस मेटल में भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, तो उसको 100% प्योरीफाई या प्योरिटी मिलने के लिए, विच इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट मैक्सिमम प्योरिटी के साथ मेटल को निकालने के लिए देयर इज अ रिफाइनिंग प्रोसेस। तो पहले ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, फिर उसको रोस्ट किया जाता है इफ रिक्वायर्ड, फिर जो ऑक्साइड है उसमें से मेटल निकाला जाता है, और फिर जो भी पॉसिबल इम्प्योरिटीज रहेगी वो हम निकालते हैं थ्रू द प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. आपने बेयर्स प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा है ना? Yes, sir. तो वहां पर भी प्रोसेसेस काइंड ऑफ सिमिलर ही था। दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। अब लुक एट द फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले वी हैव आयरन ओर विच इज हेमाटाइट, Fe2O3 with impurities। ठीक है, तो नाउ द आयरन ओर इज फर्स्ट क्रश्ड एंड ग्राइंडेड। क्रशिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ओर जो है वो एक बड़ा सा स्लैब रहेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में करना पड़ेगा, सो दैट इम्प्योरिटीज जो है वो इजीली हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब एक बहुत हाई प्रेशर स्टीम या वाटर पास किया जाता है, तो पानी के साथ जो भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज है, गैंग है, वो निकल के वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्रश्ड एंड ग्राइंडेड, और उसके बाद इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब एज आई सेड कि कॉन्सेंट्रेशन के भी अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में वी कैन हैव अ मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यहाँ पर छोटा पार्ट आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक सेपरेशन तब रिक्वायर्ड होगा जब ओर के साथ कुछ आयन या मैग्नेटिक वाले कंपोनेंट्स होंगे, आयन या मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या करता है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। तो मान लो अपना और नॉन मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में एक रोलर के ऊपर हम ओर को पास करेंगे, जहां पर रोलर का जो एक पार्ट है वो मैग्नेटिक होगा। वो क्या करेगा, सारी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो रोलर से बाहर की तरफ सेपरेट हो जाएगा। so that is the simple concept of magnetic separation। gravity separation is nothing but similar to hydraulic washing। मतलब a high pressure water is supplied through the impure ore, जहां पर जो गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ धुल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार जो अपना फूड रहता है, जैसे आप राइस बोल दो या फिर और भी दाल वगैरह रहता है, तो उसको पानी के साथ वॉश इसलिए करते हैं ताकि जो भी उसमें हल्की इम्प्योरिटीज होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी और उसको सेपरेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये घर पे तो रोज ही किया जाता है, दैट सिंपली द हाइड्रोलिक और द हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद लीचिंग। लीचिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस है विच इज डन फॉर अलुमिना। तो ये आगे अलुमिना के लिए देखेंगे। एंड फर्स्ट फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज या सल्फाइड वाले ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो आयन ओर को क्रश या ग्राइंड किया जाता है, फिर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज इनमें से कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस यूज किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये ऑलरेडी एक ऑक्साइड हो रहे तो रोस्टिंग नहीं लगेगा, डायरेक्टली वी विल डू द रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है। वी कैन डू द रिडक्शन बाय कोक और कार्बन विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर जस्ट बाय हीटिंग यूजिंग अल्यूमिनियम, और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ओर है और क्या प्रोसेस है वो इजीली रिड्यूस हो पाएगा। तो अब रिड्यूस करने के बाद हमारे पास मेटल आ चुका है, मेटल को रिफाइन करेंगे और प्योर आयन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि आयन और से आयन निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेट, रिड्यूस और रिफाइन करना पड़ेगा, फाइनली वी गेट द प्योर आयन। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. अब रिफाइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। इट कैन बी रिफाइंड और प्योरिफाइड बाय लिक्विफैक्शन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्रोसेसेस डिटेल में है जो हम समझ सकते हैं। अब आयन ओर मेनली ब्लास्ट फर्नेस यूज करके आयन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत बड़े ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या रिएक्शन कौन से टेम्परेचर्स पे होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बर्डन चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब जो ओर और इम्प्योरिटीज है, या रादर सिंपली जो इम्प्योर ओर है वो टॉप से डाला जाएगा, उसको हम चार्ज बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो द इम्प्योर ओर दैट इज Fe2O3 सिलिका अलुमिना फॉस्फेट्स वाला जो पूरा पार्ट है वो हम यहाँ पर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर द शेप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज सच दैट द चार्ज कैन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर एक कप एंड कोन अरेंजमेंट भी होता है जो दिखाया नहीं है, बट ये कप एंड कोन अरेंजमेंट क्यों यूज करते हैं? सो दैट द चार्ज कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, द आयन ऑक्साइड कम्स इन कांटेक्ट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज यूज्ड एज अ गुड reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कंप्लीटली आयन में रिड्यूस नहीं होता है, बट आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हो रहा है, पहले आयन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटाइट में यानी Fe3O4 में, और फिर वो मैग्नेटाइट जो है वापस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड देता है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ, द फेरिक हैज गॉट रिड्यूस्ड इनटू Ferrous. फेरस। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है FeO, दैट इज रिड्यूस्ड विद कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड कर दे देगा और FeO में से Fe निकल जाएगा, तो दिस विल बी द इम्प्योर आयन ऑब्टेन्ड। उसके अलावा कुछ और एलिमेंटल इम्प्योरिटीज रहती है, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड, P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या सिलिका। दे आर ऑल रिड्यूस्ड वाया कार्बन, जहां पर हर केस में कार्बन इज चेंज टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यू ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग द सेपरेटेड एलिमेंट्स मैंगनीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। ठीक है, ऊपर की तरफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज लो। Then there is indirect reduction which is done with the help of carbon monoxide and nitrogen. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है ना, इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, जो यहाँ पर फ्यूल का काम करता है। प्रोड्यूसर गैस यूज्ड एज अ फ्यूल। फिर इनडायरेक्ट रिडक्शन हो रहा है, ये देखो पहले हमने क्या किया, Fe2O3 को इनडायरेक्टली Fe3O4 में बदला, और फिर Fe3O4 को FeO में कन्वर्ट किया, और फिर FeO को कार्बन के थ्रू आयन में रिड्यूस किया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इनडायरेक्ट रिडक्शन कहलाता है। उसके बाद देयर इज स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग इन द मिडल ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। देन देयर इज कोक सॉल्यूशन, डायरेक्ट रिडक्शन एंड प्राइमरी स्लैग फॉर्मेशन। कोक रिडक्शन यानी कार्बन वाला रिडक्शन जो ये वाला किया गया है,
This is coke reduction, which is a direct reduction. And then there is a primary slag formation. Now slag is basically the layer in which the metal is present along with the other impurities present in the blast furnace. मतलब यहाँ पर ऊपर के लेयर पे हमारे पास मैंगनीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन ये सब प्रेजेंट हो सकता है मिक्स्ड फॉर्म में। उस मिक्स्ड फॉर्म को स्लैग बोला जाता है, जो एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस से निकाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी कार्बन बचा है उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट करते हैं, और वापस CO2 से कार्बन रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड वापस ब्लास्ट फर्नेस में रीयूज हो सकता है। तो दिस प्रोसेस कुड बी कैरिड आउट कंटिन्यूअसली, वेयर जो ये कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट करके वापस उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लैग टैप होल में देयर इज सिलिका, कैल्शियम का ऑक्साइड, अलुमिना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड मैंगनीज का ऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होता है आयन के साथ। ठीक है, तो फाइनली एट द लास्ट जो इम्प्योर आयन मिलता है उसको पिग आयन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज पिग आयन, which will contain iron along with carbon, silicon, sulfur, phosphorus, manganese। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑब्वियसली आयन का रहेगा। ठीक है, तो ये 93% से और भी एड ऑन करने के लिए हमें रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ब्लास्ट फर्नेस में से हमने Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट किया with 93% purity, and now the 7% impurities can be further reduced by the refining or purification process। समझा? Yes, so तो यहाँ पर अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग जोन्स में ब्रेक डाउन किया गया है। आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में they have given the names of the different zones in which the reactions are taking place। The first is a zone of combustion, then we have zone of reduction, zone of slag formation and zone of fusion। तो कौन कौन से डिस्टेंसेस पे और कितने टेम्परेचर्स पे हो रहा है उसका पूरा डिटेलिंग है। And once we get the impure iron, there is a refining process which is carried out। ठीक है, now the iron which we can get from the blast furnace is classified into three types: cast iron, wrought iron, and the important form of iron, that is steel, used in many of the important processes or construction processes। इसमें wrought iron जो है that is considered to be the purest form of iron, मतलब ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहेगा। प्योर फॉर्म ऑफ आयन वुड बी सॉफ्टेस्ट। कास्ट आयन और स्टील आयन अलॉयड फॉर्म ऑफ आयन रहता है, जिसमें द हार्डनेस इज इंक्रीज्ड एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेड हायर। मैंने बताया था कि अगर प्योर मेटल्स की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट रहते हैं और उनका हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए अलॉइंग करना पड़ता है। ठीक है, आयन की कुछ प्रॉपर्टीज: आयन मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1800 केल्विन। On addition of carbon, its melting point decreases depending on the percentage of carbon। तो कास्ट आयन में 2 to 3% ऑफ कार्बन रहता है और उसके बेसिस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाता है। Then mechanical properties of steel can be modified by addition of small amount of suitable elements like manganese, chromium, sulfur, nickel, etc। तो यहाँ पर कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है फॉर इम्प्रूविंग देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एंड these elements are called alloying elements and steel are alloy steels। They're all alloys। And difference between the cast, wrought and steel: कास्ट आयन इज हार्ड एंड ब्रिटल। रॉट आयन मैंने बोला प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन रहता है तो ऑब्वियसली सॉफ्ट रहेगा, और स्टील जो है वो इंटरमीडिएट होता है, नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट।
यहाँ पर 4% कार्बन है, मैंने 2 to 3% बोला था, यहाँ पे जो दिया है वही ध्यान रखो। Cast iron contains about 4% of carbon, here less than 0.2% प्योरेस्ट फॉर्म है, और यहाँ 0.2 to 2% ऑफ कार्बन रहता है। कास्ट आयन कहाँ का यूज कर सकते हैं? यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, पॉट्स, पेन्स, यूटेंसिल्स। जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज यूज फॉर मेकिंग सॉफ्टर पाइप्स, बार्स फॉर स्ट्रे बोल्ट्स, इंजन बोल्ट्स एंड रिवेट्स। जो बोल्ट्स रहते हैं उसको रॉट आयन से बनाया जाता है। और स्टील इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, ships, automobiles, weapons, and in many other processes. Fine. Yes, sir. So that completes the first extraction process of the iron from hematite. ठीक है, तो एक ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एक्चुअली आपके सिलेबस के लिए है, और एक जस्ट डू यू नो स्टेटमेंट दिया है ऑन पेज 181 व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आयरन possesses a high degree of magnetism below 1042 Kelvin, and this is known as ferromagnetism। और 1042 केल्विन के ऊपर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाता है, फेरो से वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये टेम्परेचर जहां पर the ferromagnetic changes into a paramagnetic substance is called Curie temperature। ये नहीं दिया है। आयन के लिए the Curie temperature is 1042 Kelvin। up to 1042 Kelvin आयन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ही 1042 के ऊपर जाएगा it will change to paramagnetic substance, and that temperature at which ferro changes to para is called Curie temperature। Important। Clear? समझा? Yes. Yes, sir.